I will continue chapter real numbers for class 10th CBSE. Okay, so today topic will be decimal expansion of rational numbers. So decimal expansion of rational numbers can be divided into two parts. First is terminating decimal expansion. टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब ये है सिंपली कि अगर हम किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो जो डिवाइड जब भी हम करते हैं तो जो रिमाइंडर अगर जीरो आता है यानी वो टर्मिनेट हो जाता है, उसका डिवीजन कंप्लीट हो जाता है, तो उसी को जनरली बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। पहले इसकी एग्जांपल्स आपको एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद फिर एग्जांपल से समझाएंगे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है। तो a rational number in the form of p upon q, a rational number in the form of p upon q, where q is not equal to 0 and p and q are co-prime integers. रेशनल नंबर तो क्या होते हैं, ये p अपॉन q की फॉर्म में होते हैं और q शुड नॉट इक्वल टू 0, अदरवाइज ये अनडिफाइंड हो जाएगा, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता। एंड p एंड q आर, ये p और q इंटीजर होने चाहिए और को-प्राइम्स होने चाहिए। को-प्राइम्स का मीनिंग क्या होता है, देयर इज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 बिटवीन p एंड q। ओके, so a rational number in the form of p upon q where q is not equal to 0 and p and q are co-prime numbers can be expressed in the form of terminating decimal expansion if prime factors of denominator either in the form of 2 raised to power m only or 5 raised to power n only or both 2 raised to power m into 5 raised to power n, where m and n are non-negative integers. You know non-negative integers means 0, 1, 2, 3, 4 and so on, that is whole numbers. 0, 1, 2, 3 and so on, these are non-negative integers. ठीक है, तो a rational number in the form of p upon q where p is not equal to 0 and p and q are co-prime integers can be expressed in the form of terminating decimal expansion if prime factors of denominator either in the form of 2 raised to power n only or 5 raised to power n only or both
this form 2 raised to power m into 5 raised to power n, where m and n non-negative integers are called terminating decimal expressions. Are called terminating decimal expansions. ओके, अब एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूं मैं आपको. विदाउट एक्चुअली डिवाइडिंग द नंबर्स वी कैन फाइंड whether it is terminating or not. So take number, let examples ले लेते हैं. 21/75. This is a rational number, okay, but it is not in the simplest form. सबसे पहले आप ये देखिए कि क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, क्योंकि हमने यहाँ क्या लिखा है डेफिनेशन में, P and Q are co-primes. Co-prime means there is no common factor other than 1. So it can be cancelled out by 3. So 3 7 are 21 and 3 2 are 6, 3 5 are 50. So it becomes 7/25. Now it is purely rational number. Now we can find whether it is terminating or not. तो हमने क्या बताया है कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर should be either in the form of 2 raised to power m or 5 raised to power n, or both 2 raised to power n into 5 raised to power n. तो फैक्टर्स करते हैं 25 के, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5. So this is 7/5 square. ये कौन सी फॉर्म है आपकी? ये फॉर्म आपकी ये वाली है. यस, या तो इस फॉर्म में हो, यानी या तो 2 हो प्राइम नंबर्स या 5 हो, या दोनों हो 2 और 5, तो वो टर्मिनेटिव होता. तो यह कंडीशन फुलफिल हो रही है. 5 आ रहा है पर 5 raised to power 2, so it is a terminating decimal. It is terminating decimal expansion. Okay. और एक एग्जांपल लेते हैं. ले लीजिए एग्जांपल सेकंड ले लीजिए. 63/64. दिस इज रैशनल नंबर, ओके, एंड इट इज ऑल्सो द सिंपलेस्ट फॉर्म. कैंसिल नहीं होगा किसी भी नंबर से. तो आप 64 डिनोमिनेटर है आपका 64, तो इसके आप फैक्टर्स करेंगे. 2 3 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 6 जा 2 8 जा 2 4 जा into 2 जा 2 1 जा. So this is 63/2 raised to power 1 2 3 4 5 6. Yes, this is also in the form of this. Denominator is in the form of this, so it is also a terminating decimal. It is terminating decimal. Terminating decimal. Okay. एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं. लास्ट एग्जाम्पल 3 देख लीजिए. एक और 11/400 ले लीजिए. दिस इज ऑल्सो rational number. Okay. Now denominator is 400, so factorize this 400. 2 से 2 2 जा, अब 2 1 जा, 2 5 जा, 2 25 जा, 5 5 जा and 5 1 जा. So this can be written as 11/2 raised to power how many powers? 1 2 3 4 into 5 raised to power 2. Yes, it is in the form of this. Denominator in the form of 2 raised to power n into 5 raised to power n. So it is also terminating decimal expansion. It is terminating decimal expansion. Actually इसका मतलब क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब ये है कि जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर मस्ट बी 0. देखिए जैसे मान लीजिए मैंने यही नंबर लिया था, सपोज ये लिया था 7/25. तो 7/25 का मतलब क्या? 25 का 7 में आपको डिवाइड करके देखते हैं. तो 0.0 25 2 जा 50, 20 पॉइंट लग चुका है 0, 25 8 जा 200, 0 रिमाइंडर 0 आ गया, यानी इसका डिवीजन कंप्लीट हो गया. 0.28 आ गया और आपको
आगे कुछ नहीं करना, रिमाइंडर 0 है, इसलिए क्या कहलाएगा, टर्मिनेट हो गया। ये इसका डिवीजन हमने किया तो क्या हुआ, टर्मिनेट हो गया। इसी को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। इज इट क्लियर? नोट कर लीजिए। Now second type is non-terminating repeating decimal expansions. इसमें क्या है, a rational number P upon Q in the form of P upon Q where Q is not equal to 0. P and Q are co-prime integers. ठीक है, एक एक वर्ड की इंपॉर्टेंस है। मैंने लिखा को प्राइम, यानी को प्राइम भी होनी चाहिए और इंटीजर भी होना चाहिए। P और Q integers can be expressed in the form of non-terminating repeating decimal expansion if prime factors of denominator is either of the form of 2 raised to power m and any other prime factor other than 2 and 5, other than 2 and 5, 2 raised to power m to 5 to power n, or it is of the form 5 raised to power m and any other prime factor other than 2 or 5, 2 raised to power m or 5 to the power n, then it is called non-terminating decimals, non-terminating but repeating decimal expansion, इसको मैं आपको समझाता हूं, एग्जांपल से समझाता हूं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक मैं सिंपल जो आपने 9th में पढ़ा है बताता हूं। मान लीजिए यहाँ पर नंबर है 10/3, ये कोई P upon Q रैशनल नंबर है। अगर मैं 3 का 10 में डिवाइड करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 3 3 जा 9, 1.0, 3 3 जा 9, अगेन रिमाइंडर 1 पॉइंट लग चुका है, 0, 3 3 जा 9, अगेन 1 रिमाइंडर, यानी हमेशा रिमाइंडर 1 आता जाएगा, इसका कभी एंड नहीं होगा। इसका डिवीजन जब हम करेंगे तो कभी इसका डिवीजन एंड नहीं होगा, यानी रिमाइंडर 0 कभी नहीं आएगा। इसीलिए हम इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कभी टर्मिनेट नहीं होगा। और रिपीटिंग लिखा है, रिपीटिंग कोई एक ब्लॉक ऑफ डिजिट क्या होगा, रिपीट होगा। जैसे यहाँ क्या रिपीट हो रहा है, 3 3 3 3 ऐसे आता जाएगा आपका, है ना।
तो इसको आप लिख सकते हो 3.3 बार। जो रिपीटिंग नंबर होता है उसको हम बार लगा देते हैं। ओके, तो यही इसका लॉजिक होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं और 29/600 ले लीजिए एग्जाम्पल फर्स्ट। ठीक है, तो 29/600 है, तो डिनोमिनेटर यहाँ पर क्या है 600, फैक्टर्स कर लेते हैं 600। यानी सिंपल लैंग्वेज में कहें, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन वी कैन टेल वेदर इट इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब अगर हम इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर करें तो डिनोमिनेटर में प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी नंबर दूसरा आता है तो ये क्या होगा 100% नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो इसके जब फैक्टर्स करेंगे आप तो 2 3 जा 0 0, 2 से 150, 2 से 75, 3 2 जा 3 5 जा 5 5 जा 5 5 जा। आप इसको क्या लिख सकते हैं 29/2 रेज़ टू पावर कितनी 3 और 3 इंटू 5 रेज़ टू पावर 2। ये 3 एक्स्ट्रा आ गया 2 और 5 के अलावा। यही हम कहना चाह रहे हैं 2 और 5 के अलावा अगर कोई दूसरा प्राइम नंबर आता है तो वो क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा बट रिपीटिंग। तो क्या होगा इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आई थिंक समझ में आया होगा आपके ये सब कुछ। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं 57/162 ले लेते हैं। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल अगेन डिनोमिनेटर इज 162, तो इसके आप फैक्टर्स कर लीजिए। पहले किससे कैंसिल हो जाएगा, लेकिन क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है? मेरे ख्याल से सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। ये किससे कैंसिल हो रहा है? ये 3 से कैंसिल हो रहा है। तो 3 1 जा 3 9 जा 3 5 जा 50 3 4 जा यस 19/50। ये है आपका प्योर रैशनल नंबर, सिंप्लीफाइड रैशनल नंबर। अब डिनोमिनेटर क्या हमारा 54, तो 54 के आप फैक्टर्स करके देख लीजिए क्या 2 और 5 के अलावा कुछ आ रहा है। 2 से ये 27, 3 9 जा 3 3 जा और 3 1 जा यस। तो दिस इज 19/2 इंटू 3 क्यूब। ये 3 आ गया 2 और 5 के अलावा, इसमें क्या है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है ये। इज इट क्लियर? आई थिंक अब ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके अलावा हम प्रॉब्लम्स लेंगे अब बेस्ड ऑन रियल नंबर्स, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं जो बोर्ड में भी आती हैं, उसको हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।